Kani weave. In the heart of Kashmir lies an ancient craft that has endured for generations, the Kani weave. Unlike ordinary weaving styles, this art relies not on shuttles or simple tools, but on countless slim wooden sticks known as kanis. With fine wool threads wound around them, each kani adds a unique hue, and together they form a vibrant tapestry of colors. Weavers don't rely on memory or guesswork. In front of them sits a coded guide called the talim, a detailed set of weaving instructions. This intricate script tells the weaver step by step, telling exactly which color goes where and which kani to use for each thread. The talim is so precise that it indicates the number of warp threads each kani must pass through. Depending on how detailed the design is, a single talim can spread across several pages with line by line instructions. Understanding and following it requires skill, sharp memory, and immense concentration. Each kani or color is carefully interlaced with the next, building up patterns row by row. What begins as a simple weave gradually transforms into complex motifs. Swirling paisleys, twisting vines, chinar leaves, almond blossoms, and wildflowers, all inspired by the breathtaking beauty of Kashmir. Crafting a single Kani shawl is a labor of time and devotion. Depending on the complexity of the pattern, it may take several months or even years to complete. For the weaver, the process is not measured in hours but in dedication. Stitch by stitch, season after season, the loom becomes the world, and every move is guided with patience and commitment. The process also demands extraordinary precision. Pashmina, one of the most delicate yarns used in Kani weaving, requires the weaver to have perfect hand to eye coordination. Even occasional snapping of the warp threads, a common occurrence in the painstaking process, is handled with expertise. Through years of experience, the weaver knows exactly which yarn has given way and how to reconnect it seamlessly, ensuring the weave continues without a flaw. This is why every Kani shawl is more than just a piece of clothing. It is a piece of history, carrying forward the skill of the past artisans, the perseverance of today's weavers, and the spirit of Kashmir's natural and cultural heritage. इसमें यहाँ धागा डलेगा, फिर ये कट होगा, फिर यहाँ धागा आएगा। ऐसे चलते-चलते कम से कम इसमें 200 से लेके 250 तीलियाँ चलते हैं हर जगह। वही कट हो जाते हैं, वही बढ़ जाते हैं, ठीक है? और ये से लेके यहाँ तक इसको हम बोलते हैं मेहराब। मेहराब के बाद शुरू होता है, इसको बोलते हैं जीरा। ये एक बॉर्डर बनता है, जितना चौड़ा शाल हो उतना चौड़ा बॉर्डर भी लगना चाहिए, तभी इसे सुंदर दिखेगा। ये कंट्रास्ट में हमेशा बनता है। कभी-कभी सेम कलर भी डालते हैं, लेकिन बॉर्डर का डिज़ाइन और इसका थोड़ा-सा फ़र्क होता है, मिलता-जुलता होता है, और ये बॉर्डर ऐसे चारों साइड आता है। और ये हो गया कहानी की वीव, जब हम कहानी करते हैं। अब हर कहानी में डिफरेंस होता है। कोई क्या, अगर दूर-दूर डिज़ाइन होगा, उसमें कारीगर को 100 से लेके 150 तीली हो जाएगा, उसका रेट नेचुरली कम होगा, टाइम भी उसमें समय कम लगेगा। अब जितना गन्ना डिज़ाइन उठाएगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब गन्ने के साथ-साथ आजकल ये जो है प्रमोट काम को किया है, गन्ने के साथ-साथ ये फूल लिया है। एक तो गन्ना है ही है, ऊपर से इस पे आउटलाइन भी दिया है। तो जितना आउटलाइन होगा उतनी जितना तीली हमारी आउटलाइन बढ़ होगा गई। उतनी तीली भी बढ़ गई, उतना और टाइम भी बढ़ आउटलाइन गया। का काम थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है, ये तीली जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ। इसको बोलते हैं हम 5 नल या 6 नल। हाँ। कंघी लगी होती है, वो कंघी काउंट में करके होता है हम लोग। काउंट कम 3, 4, 5, और ये जो आउटलाइन लगती है ये सिंगल नल में लगती है। मतलब इसके धागा जो है वो ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए। हाँ। अगर ये खिंच गया तो यहाँ सुराख लगेगा। हाँ। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कारीगर को, कैसे नाट नीचे घुमाएंगे। मैं नीचे भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो सिंगल में से कैसे नाट घुमाया है, हाँ। इसके साथ यूँ, इसके साथ यूँ, इसके साथ। और ये पूरी इंटरलॉकिंग तो होती है। पूरी इंटरलॉकिंग होती है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। जितना आउटलाइन ज़्यादा लेंगे आप, इसी शाल में देखो यहाँ लिया एक-एक फूल में, फिर जब हम यहाँ पे पहुँच गए, ये बड़े फूल में इतना लिया, फिर ये सिंगल नल चल गया ऐसा, फिर ये 5 फूलों से इन्हें पूरा आउटलाइन लिया 5 के 5। तो जितना आउटलाइन किया जितना उतना आउटलाइन मेहनत बढ़ गई। करेंगे अब जैसे उतनी इसमें मेहनत बढ़ नहीं गई, है
अब ये देखो इसमें पहले यहाँ पे 4-4 8 दिन का काम कट हो हाँ, गया, हाँ, मेहराब बिल्कुल सिंपल हो गया। हाँ, उसके बाद ये बॉर्डर तो है बहुत हाँ, अच्छा घना उसी तरह का, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलेंगे फूल पे, इसमें कहीं भी आउटलाइन नहीं है। आउटलाइन। अब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ बहुत घना डिज़ाइन है ये भी, लेकिन आउटलाइन नहीं है। हुँ, देखिए आउटलाइन की वजह से इसमें जो है काम कम आएगा। हुँ, ऐसे दिया है फूल, जैसे ये ग्रीन दिया है, पूरा हाँ, स्ट्रेट यूँ हाँ, दिया है। तो यहाँ तक में एक तीली एक लगी, तीली फिर लगी, एक फिर तीली एक लगी, तीली लगी, फिर फिर यहाँ हाँ, पे तो लगी, इसमें फिर यहाँ पे लगी, फिर यहाँ, मतलब आउटलाइन का जो काम है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो समय इसमें नहीं दिया है। लुक बहुत अच्छा है।